اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میرے خیال میں اڈیالہ والوں کو میری شکل پسند نہیں ہے، اس لیے 5 گھنٹے بٹھا کے واپس بھیج دیتے ہیں، تو ملاقات آج نہیں ہو سکی، لیکن بار پریس ٹاک کی میں نے۔ ہوپ فلی مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک، لیکن ہم پولیٹیکل کھیلیں گے، ہمارے پیچھے قوم ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کچھ ایسا ہو جس سے پورا سسٹم ایٹ سٹیک ہو۔ ہم چاہیں گے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم چلے، کیونکہ تحریک انصاف اس کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ خان صاحب نے آج جو ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے لیے تیار ہے، انکوائری کے لیے تیار ہے، کمیشن بٹھانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے آنے کو تیار ہے، اور یہ فوج ہماری ہے، وہ ساری باتیں انہوں نے کہا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ فوج بھی ہماری ہے، ادارہ بھی ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، لیکن جب آرمی چیف کی بات ہوتی ہے تو وہ بالکل ان کو الگ کر کے وہ بات کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں سے آپ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے، 9 مئی پہ آپ معافی نہیں مانگنا چاہتے جو اسد قیصر صاحب نے کل کہا، تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ دیکھیں، ملک کو چلانے کے لیے بات کرنی پڑے گی حکومت کو۔ میں تو پہلے دن سے، شاید آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات میں نے کی اور سارے اب اس نقطے پہ آ رہے ہیں۔ میں نے یہی کہا تھا کہ سیاسی جماعت سے مذاکرات ہوتے ہیں، جتنا بھی اختلاف ہو آپ ٹیبل پہ بیٹھیں، اپنے پوائنٹ سامنے رکھیں کہ بھئی یہ میرے نکات ہیں۔ میرا سب سے پہلا بڑا نقطہ ہے عمران خان صاحب اور اسیران کی ریلیز، ساتھ میں مینڈیٹ کی واپسی، اور آگے کا لائے عمل کے آگے کس طرح جایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے وہ نہیں مانیں گے، وہ اپنے بات رکھیں گے، ہم اپنے نکات رکھیں گے، اگر بات چلتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہم اپنی گڑھڑی باندھ کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن بات ہوگی سیاسی جماعتوں سے، اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے ان سے انگیجمنٹ ہو سکتی ہے کسی لیول پہ۔ کوئی جس طرح بھی کل ڈی جی ISPR صاحب نے گفتگو کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی بڑی ریزرویشنز ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے بہت سے خدشات جو ہیں وہ غلط ہوں، اس کے لیے اگر کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ معافی کی جہاں تک بات معافی کی نہیں ہے۔ اگر تو ہمارے کسی بندے نے، ہمارے کسی شخص نے غلطی کی ہے، پھر اس کو سزا ملنی چاہیے، معافی آپ نہیں دے سکتے۔ آپ معافی دینے والی آپ کی وہ ایک آئینی حیثیت نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس استحقاق ہی نہیں ہے۔ معافی پاکستان میں کوئی نہیں دے سکتا، معافی میں اپنے ذاتی عمل کی دے سکتا ہوں، اگر میں کسی چیز پہ آپ مجھے ناراض کرتی ہیں تو میں معافی دے سکتا ہوں، لیکن ریاستی اگر کسی جگہ پہ کوئی حملہ خدا نخواستہ کسی نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر پروسیس کیا ہوگا؟ کیا ملٹری کورٹس؟ اس کے لیے پھر پراپر جوڈیشل پروسیس ہوگا۔ اس لیے ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیے، میں نے یہ بات کی تھی کہ 8 فروری کا الیکشن ایک بہت زبردست آپ کو اللہ تعالیٰ سیاسی ایک دروازہ کھول رہا ہے کہ آپ اس دروازے سے نکلیں اور پاکستان کو ایک اچھے مستقبل کی طرف لے کے جائیں۔ وہاں وہ انہوں نے دروازہ بند کر کے تو اوپر سے فارم 47 کی بجلی گرا دی پوری قوم۔ نہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں جو کہ بہت آپ ہمیشہ یہ بات کرتے رہے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں میں نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کب ہم نے کہا ہے؟ کب خان صاحب یہ جو کمیٹی بنائی ہے، ابھی انہوں نے ٹیلی گراف کے اوپر لکھا ہے، ابھی انہوں نے اس سے پہلے یہ جو کمیٹی ہم نے بنا دی ہے 3 بندوں کی، انہوں نے کوئی بٹیرے تو نہیں بیچتے نا، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی میلے میں بیٹھ کے کوئی کیا کرنا ہے؟ میلہ مویشیاں تو نہیں سجانا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خان صاحب تیار ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے؟ آج بھی آپ نے ابھی اپنی ابتدائی میں بات نہیں کی، ابھی عمر ایوب صاحب نے کہا ہے۔ دیکھیں، ہم تو کب سے ہم نے یہ بات کی ہے، لیکن انیشیٹو کس نے لینا ہے؟ اگر حکومت کے پاس خواجہ آصف صاحب ہیں تو پھر ہم نہ ہی سمجھیں، کیونکہ خواجہ صاحب کو تو شاید فکر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بیٹھ گیا تو پہلے سیالکوٹ پہ بیٹھے گا، وہ ماجی ہماری جیتی بھی ہے، ماجی کا حق ہے، خواجہ صاحب آپ ماجی کی سیٹ پہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی سیریس بندہ حکومت کی طرف سے بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل اسحاق ڈار صاحب بات کرتے ہیں یا شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں، اپنی ٹیم بھیجیں، اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے تو کئی مرتبہ کہا، پہلے بھی کہا آپ کو، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ 3 سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ان سے بات چیت نہیں ہوگی، باقی سب سے بات ہوگی، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی، مگر آرمی چیف سے نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ان کے سٹیٹمنٹس؟ مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب آپ ہی کے پروگراموں میں بیٹھے ہوتے تھے، 2014 کا اینڈ تھا یا 15 تھا شاید، جب یہ بات ہوتی تھی TTP سے بات ہونی ہے نہیں ہونی، فلانا ہونا ہے، وہ اس پہ مہینوں بحثیں ہوتی رہیں۔ عملی اسمبلی میں جب کام کرنے کی بات آئی تو بہت کم لوگوں نے پھر کام کیا۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، ایک وقت بھیجے، اگر ہم نے بات نہیں کرنی ہوگی تو سب کے سامنے ہم یہاں ہو جائیں گے کہ بھئی ہم پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، ہم پولیٹیکل مینیورنگ پہ یقین نہیں رکھتے، پولیٹیکل ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے۔ حکومت کی طرف سے کون سا وقت ابھی تک آیا ہے؟ ساری میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں، بات ہونی چاہیے، بات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، بات نہیں کرتے، حل کیا ہے؟ نہیں، مگر اس کے 9 مئی کے ساتھ مشروط کر دیا نا۔ کیا عمران خان کو جیل میں رکھ کے، ایک غلط کیسوں میں جیل میں رکھ کے یہ مسائل کا حل؟ اچھا، یہ جو ابھی آج لاہور میں وکلاء کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا یہ مسائل کا حل؟ میں ویسے پوچھنا چاہتا ہوں، وکلاء ہیں سب سے زیادہ پڑھی لکھی کمیونٹی میں سے ایک کمیونٹی ہے، شاید سب سے زیادہ
उनके कुछ मुतालबात हैं, उसका हल ये वाटर कैनन से उन पे आप पानी फेंकें। लेकिन वो भी तो हर दूसरे दिन जो है वो अपने मुतालबात तो के लिए देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप किस लिए होती है। इधर हमारे एहतजाज होते थे ना, खान साहब मुझे या अपना उस जमाने में तो परवेज खटक साहब हमारे साथ ही थे, हम जाके एंगेज करते नहीं थे, हमने एंगेज किया, उनको हम डिसएंगेज कर देते थे, चीजें डिस्कस करते थे। परवेज खटक साहब भी नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी बाहर नहीं है, आपकी पार्टी के अंदर जड़े फौत तो नहीं हो गया ना, अल्लाह आपको जिंदगी दे, और आप हमेशा से टीएलपी का कितना खतरनाक मामला था। आप बिल्कुल टीएलपी के मामले को हमने हल करके डायलॉग से हल करके नहीं दिया, बिल्कुल जो है आपके जेलम ब्रिज पे स्टैंड ऑफ था। वो वही डायलॉग तो गले पड़ा हुआ है। टीटीपी के ऊपर तो भी हम बात करते हैं, मगर 9 मई टीएलपी, अच्छा टीएलपी की बात करें, जो स्टैंड ऑफ था, मगर मैं जाके गया लाहौर, बैठा रिजवी साहब के साथ, बात हुई, मसला हल हुआ गुफ्तगू से। वरना आप मुझे बताएं, अगर जेलम ब्रिज पे वो खुदा न खास्ता कुछ ऐसा वैसा हो जाता, दोनों तरफ पाकिस्तानी खून नहीं था, रेंजर भी पाकिस्तानी, टीएलपी के कारकुन भी पाकिस्तानी। खान साहब ने हमें इख्तियार दिया, मुझे इख्तियार दिया। मगर मुझे मैं 9 मई पे, अली भाई मैं 9 मई पे अगर जाऊं, 9 मई के अंदर आपके बहुत सारे लीडर्स की ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आपने देखी होंगी, वो मौजूद थे, वो वहाँ पे गए, इंस्टिगेट किया, खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं, उन्होंने इंस्टिगेट किया, जहन साजी की, उसके ऊपर वो कहते हैं माफ़ी मांग ले, हुकूमत भी कहती है, फौज भी कहती है माफ़ी मांग ले, आगे चले। आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते? देखिए तस्लीम तो करें कि गलती हुई है। एक बात बताइए, हम माफ़ी उस चीज़ की मांगे जो हमने करवाया हो, जो चीज़ गलत है उसको हम गलत कहते हैं। तो क्या उस दिन कुछ नहीं हुआ था? एहतजाज हमारा पुरअमन हक था। एहतजाज के साथ साथ वो चेहरे नजर आते हैं टीवी के ऊपर। मुझे एक बात बताइए, वो ऑडियोज, मुझे एक बात बताइए, जिना हाउस एक कोर कमांडर का घर जो है, वो उस कोर कमांडर का नहीं है, वो आपका मेरा हम सबका है, क्योंकि हम बेसिकली टैक्स पेयर्स हैं, हम उसके मालिक हैं, वो उसके वहाँ पे अमीन है उसकी हिफाजत के लिए। जलाया तो फिर भी नहीं जा सकता। उस पे जो हमला है वो हमारे घर पे हमला है, वो किसी भी घर पे, ठीक है ना जी। लेकिन एक बात मुझे और किसी भी घर पे एक मेरा सवाल है, मैंने आज अडियाला के बाहर भी ये सवाल रखा, कल मैंने मेरी पेशी थी, वो 25 मई का केस मुझ पे अभी तक चल रहा है, लॉन्ग मार्च वाला 2 साल से चल रहा है, वहाँ भी मैंने एक नुक्ता रखा, आपको इमरान खान साहब पसंद नहीं है, उनकी शक्ल आपको पसंद नहीं है, उनकी सियासत पसंद नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। हर आदमी की इज्जत है, पुलिस वाले की है, जज की है, जर्नैल की है, जर्नल सबकी है, उनकी भी है। 25 करोड़ का जो नुमाइंदा होता है, एक होता है वज़ीर आज़म होता है। कभी आप उसको हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ को जेल जहाज़ में बैठा के हथकड़ी डाल के अपना मुशर्रफ साहब मुल्क से बदर करते हैं, कभी उसको आप फांसी चढ़ा देते हैं जिस तरह भुट्टो साहब के साथ हुआ, कभी उसको मार दिया जाता है जिस तरह बेनज़ीर साहिबा के साथ हुआ, कभी उसको गोलियां मारी जाती हैं इमरान खान साहब की सूरत में। लेकिन जो कॉलर से पकड़ के घसीटा गया हाई कोर्ट में और अगवा किया गया, ये इमरान खान को नहीं, ये 25 करोड़ अवाम के साथ हुआ। उनको मैसेज दिया जा रहा था कि ये आपकी, देखें ये इस तरह से मुल्क नहीं चलते। चाहिए, अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी। इसका रिएक्शन, एक वजीर आजम कत्ल हो गई, एक वजीर आजम फांसी चढ़ गया, एक वजीर आजम के हाथ जो थे वो जहाज की सीट से बांधे गए, क्या किसी ने GHQ पे उसके ऊपर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस पे किया, PTV पे हमला किया? किसी सियासी जमात ने इस तरह नहीं। देखिए हमले को कोई कंडोन नहीं करता, मैं तो सिंपल बात आपके सामने करता हूँ, या तो फिर साइन पाकिस्तान को आप वहाँ एहराम मिस्र भिजवा दें ताकि लोग उसका नज़ारा करने जाए, या फिर इस पे अमल करें। अगर इस पे हम आज अमल करते हैं, मसाइल का हल हमारे पास है, आप इस पे अमल करें। आईन पाकिस्तान आपके सामने मौजूद है, उस पे अमल करें। आईन पाकिस्तान कहता है कि सब इदारों ने अपने अपने पैरामीटर्स में रहना है। अगर हम अपनी लाइन क्रॉस करते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हुई लाइन क्रॉस होती है, इस अगर का फैसला कौन करेगा? यही तो अगर अदम एतमाद था तो वो आईनी तरीका था, उसको आप लोगों ने एक साजिश बना दिया कि वो भी एक साजिश हुई। आईन पाकिस्तान करेगा और उसके इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट है। आईने पाकिस्तान कहते हैं अदम एतमाद लेके आओ, अदम एतमाद में आपको नाकामी होती है, आप उसको साजिश से जोड़ते हैं। ना करें ना उस पे, तो फिर कैसे होगा ये? मैं अर्ज करता हूँ उस पे जुडिशल कमीशन बैठाएं, उस पे हमने तो रिक्वेस्ट की, जुडिशल कमीशन जरूर बैठाएं। देखें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साजिश नहीं थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था, बंदियाल साहब की कोर्ट ने कहा हुई है, सर सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन बुलाया गया, सब चीजों को दिखाया गया। रूम नंबर 1 में मैं मौजूद था, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, क्या फैसला नहीं हुआ था कि गैर आईनी असेंबली तोड़ी गई? आप खुद लॉ स्टूडेंट हैं, बताइए वो गैर आईनी असेंबली नहीं तोड़ी? जी PM हाउस में मौजूद थे, खान आमिर डोगर साहब थे, मैं था। खान साहब ने मुझे कहा कि जाओ आप सुप्रीम कोर्ट में, शायद वो अभी खोलें इसको। हम गए, मैक्सिमम घंटे की हियरिंग होगी, उससे भी शायद कम थी। देखें इन सारे मुहरिकात का जायजा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में 9 मई से भी, और ये जो अभी 8 फरवरी का डाका पड़ा है इलेक्शन पे, इससे बड़ी अगर कोई गेम है, उससे बड़ी अगर कोई गेम है वो है वो अदम एतमाद, जिसमें बैरूनी हाथ मुलविस हैं, या
अगर नहीं थे तो डिमार्श हमने शौकिया किया था। शहबाज शरीफ साहब ने क्यों, अभी जो टेलीग्राफ में खान साहब ने लिखा है, अभी टेलीग्राफ में जो खान साहब ने लिखा है उसमें तो उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, क्या उन्होंने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया की तौसीक नहीं की थी? क्यों की थी? हमने क्यों डिमार्श किया था? शौक था हमें अमेरिका को डिमार्श। साफ कहा गया था कि साजिश नहीं है। इंटरफेरेंस तो है ना। इंटरफेरेंस तो बहुत सारी चीजों पे लोग मैं अभी आपके स्टूडियो में आया हूं, मैं तो बड़ा मासूम सा इंसान हूं। जब सुपर पावर किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस करती है, ये अचानक क्या असेंबली तोड़ना आईनी था? मुझे ये बताइए। असेंबली तोड़ना नहीं, उसके खिलाफ अदम एतमाद लाना। उस वक्त जब असेंबली तोड़ी गई थी वो आईनी था, जब अदम एतमाद पेश करना गैर आईनी था। मेरा तो नुक्ता बड़ा सिंपल है। जो लोग उस अदम एतमाद में इन्वॉल्व थे, क्या ये बात एक हकीकत नहीं है कि अब अभी इधर अदम एतमाद आया नहीं था? अमेरिका में डोनाल्ड लू को पता था कि अदम एतमाद आ रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो? पाकिस्तान में वो कौन लोग थे जो रजीम चेंज में इन्वॉल्व हुए? अली भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या अदम एतमाद जो पाकिस्तान की सियासी जमातों ने पेश की वो आईनी अमल था या गैर आईनी था? आईनी होगा तब जब बाहर से उसमें मुहरिकात ना होंगे। अगर इंडिजिनस है, पाकिस्तान की अपनी सेल्फ प्रोडक्शन है, इन लोगों की अपनी सोच इख्तरा है जिसमें बाहर के मुहरिकात नहीं, बिल्कुल उनको हक है, रोज लाएं, हक है ना, लेकिन उनको हक था ना, आइन के तहत हक था ना। डांडे वाशिंगटन से अमेरिका तो नहीं पेश कर रहा था सर। मुझे आप एक बात बताएं, वो तो सियासी जमातें पेश कर रही थी। अभी तो इधर अदम एतमाद नहीं आई थी, पाकिस्तान में अदम एतमाद नहीं आई थी, तो डोनाल्ड लू को कैसे पता था कि अदम एतमाद में इमरान खान साहब को फारक? अभी तो नहीं आई थी। इस बात का फैसला आप कैसे कर सकते हैं? जुडिशल कमीशन करेगी। जुडिशल कमीशन जो साइफर था, लेकिन आप तो साइफर से पहले इनकारी थे। ये क्या ये लोग साइफर से पहले इनकारी नहीं थे? अब साइफर पे केस चला रहे हैं। पहले तो उस पे माफी मांगे ना। ये जो कह रहे थे कि साइफर नहीं था, अब क्या इस पे माफी मांगेंगे? साइफर तो आ गया, साइफर एक हकीकत है। को मीटिंग में तय पा गया था अपोजिशन की, हमने रिपोर्ट किया था कि ये अदम एतमाद आ रही है। 8 मार्च को डोनाल्ड लू कह रहा है, उस दौरान टीवी टॉक शोज का मौजू ये था कि अदम एतमाद आ रही है। मैं मफरूज़ों पे बात नहीं करता। मैं तो आपको हक़ाइक़ बता रही हूँ, आप उठा के देख ले डेट्स। आई वाज द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बिल्कुल। अगर अदम एतमाद आती तो स्पीकर के बाद अगर पहला बंदा होता जिसको उसकी इत्तला दी जाती वो मैं था। सर टीवी टॉक शोज पे बात हो रही थी। टीवी टॉक शो नहीं शेख रशीद साहब ने मेरे प्रोग्राम पे एडमिट किया कि अदम एतमाद आ रही है। टीवी टॉक शो पे नहीं चलती। मैं जनवरी की बात कर रही हूं। पाकिस्तान के कौमी असेंबली में अभी अदम एतमाद नहीं आई और अमेरिका में उनका एक हाई ऑफिशियल उसको पता है कि अदम एतमाद आ रही है और वो वार्न कर रहा है कि अगर कामयाब ना हुई तो आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा और अगर कामयाब हुई तो हम आपको माफ कर देंगे। क्या ये माफी वाली लाइन वहां से तो नहीं ली उन्होंने? नहीं, उसी अमरीकी सफीर से अब आपकी मुलाकातें भी होती हैं, अमरीकी सुफरा से, उसी अमरीका के साथ आप बात भी कर रहे हैं। वही अमरीका आपसे कह रहा है, आपके लीडर की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है। वही अमरीका से आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनी है। कल जो उमर अयूब साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बात हुई है। क्या आपका अमरीकी सफीर से मिलिट्री कोर्ट्स पे बात करना बनता है? उमर अयूब साहब ने ये बात भी की है कि हमने उनसे इमरान खान साहब के मामलात में उनसे कोई हेल्प जो है वो नहीं मांगी, लेकिन अमेरिका के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमल दखल के हम खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे। हमने हमेशा ये बात की। मुझ पे कल भी ये सवाल हुआ कि आप उनके सफ़ीर से क्यों मिले हैं? मैं कहा मिलना चाहिए, लेकिन जब दूसरे मिलते थे तो आप कहते थे रिजीम चेंज। ना, नुक्ता हमारा समझिए। हम उनसे बेहतर ताल्लुकात के लिए मिल सकते हैं, हम उनसे दो तरफा ताल्लुकात पे बात करने के लिए मिल सकते हैं, हम उनसे दोस्ती ज़रूर करना चाहेंगे, गुलामी नहीं। अगर उमर अयूब उनसे इसलिए मिले हैं कि उमर अयूब ने इस हुकूमत के खिलाफ खुदा न खास्ता, मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि अगर कोई साजिश है जिसमें इस हुकूमत को हमने उल्टाना है और उसके लिए वो फिर अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं, मैं पहला बंदा हूँगा उमर अयूब से मैं सवाल करूँगा। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि हम एक मुल्क अमेरिका या कोई भी मुल्क उससे मिलना ही बंद कर दें? नहीं, उनसे आप मिलिट्री कोर्ट्स पे हमने तो कभी ये बात नहीं की। रूल ऑफ लॉ के लिए हमने हमेशा उनसे ये कहा है कि हम बिजनेस पे बात करेंगे, दो तरफा ताल्लुकात पे बात करेंगे, हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे बात करेंगे। हाँ, ये चीज़ कि हमने अपनी फॉरेन कैसे बनानी है, अपने मुल्क में हमने फैसले कैसे करने हैं, वो हमारी डोमेन है। जिस तरह हम आपके मुल्क में मुदाखलत नहीं कर सकते, आपको हमारे मुल्क में मुदाखलत का हक नहीं है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात करे, कोई माफ़ी तलाफ़ी कुछ बात हो सकती है। क्या आपकी पार्टी के अंदर कोई ऐसी रियलाइजेशन है कि 9 मई से आगे बढ़ा जाए और उसके ऊपर पछतावे का इजहार किया जाए? 9 मई से बड़े बड़े सानहे इस मुल्क में हुए हैं, ये मुल्क टूटा है। क्या उस पर कोई मूड है किसी का कि संजीदा बात करें? मुल्क क्यों टूटा, उसमें किसके क्या मुहर्रिकात थे?
एबटाबाद ऑपरेशन पे आज उमर अयूब साहब ने बात की है। आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चों के सर कटे हैं, आज तक उनकी फैमिलीज मुतमईन नहीं है। हालांकि हमने कोशिश की है, हमारी वहाँ पे हुकूमत थी कि हमको जितना मुतमईन कर सकें करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट हो कि मैंडेट कहाँ पड़ा था और किधर गया, और उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट नहीं थी बहुत से लोगों की। क्या 8 फरवरी को जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, क्या वो शहबाज शरीफ ने करवाया है?